رات کے 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بالآخر میں مجبور ہو کے اپنی بہن کے کمرے میں گیا تاکہ میں آہستہ سے اپنی بڑی بہن کو اٹھا سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھی اور پھر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں سو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بہن رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا۔ ہمارا باتھ روم باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب آیا تو مجھے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جو باتھ روم کے قریب سے آ کے سنا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو ورنہ کوئی آ نہ جائے۔ اور کوئی بندہ تھا جو بول رہا تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا، تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون کے ساتھ کرنے دو۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ سکوں کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا۔ پھر میں باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے اندر دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا۔ میں پریشان ہوا کہ کیا کروں، اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے مین دروازے پہ آیا اور میں نے ہلکے سے کہا، کنیز، مجھے پتا ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں سے کوئی شور سن کے جاگ نہ جائے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کے اندر سے آواز آئی، بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں، جائیں آپ۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تیموری ہے نا، وہ آوارہ لڑکا، اسی کے ساتھ تم رنگرلیاں منا رہی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھولو، ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں گا۔ پھر کنیز کہنے لگی، اچھا بھائی، آپ کسی کو نہ اٹھا کے لائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ کنیز نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی۔ وہ بھی رکا رہا اور میری بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پہ جھوٹ موٹ کا غصہ کیا۔ مجھے خیر پہلے شک تھا اپنی بہن پہ کہ شاید وہ اس طرح کے کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے رنگے ہاتھ اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سب کب سے چل رہا تھا تم دونوں کے بیچ؟ اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم تو بڑا کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، پر یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف، جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، یوسف، تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ امی اور ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی، وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ پھر میں نے کہا، اچھا، تم اس تیمور کو بھگاؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، وہ یہ سنتے ہی باہر چلا گیا۔ اس نے میری بات بھی نہیں سنی، اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم یہ جو کام اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ میں امی اور ابو کے اٹھا کے لاؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف، شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں ہی اٹھانے آیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا
मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। खुद को बिना सुकून दिलवाए फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो। फिर मैंने कहा कि एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी। उसने कहा, भाई अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी इस तरह। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी पहले शर्त सुन लो। मैंने बहुत इस्रार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी। फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद तो ना आई, मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा। वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई थी पता ही नहीं चला, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाए और ये काम न कर लें। आखिरकार वही हुआ। खैर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आंख लग गई थी। अम्मी ने कहा कि अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। फिर मैं उस मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि अम्मी के साथ। खैर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उसका नाम आलिया है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने से मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके आलिया ने मुझे फोन किया। मुझे कहा, यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रही हूँ। मैंने कहा, आलिया मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो नहीं होते जहाँ हम जाके मिल लें। फिर आलिया ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना, हम वहां एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि आलिया के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी, इतनी खूबसूरत कि गांव के सारे लड़के उसी के पीछे थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरे पास दूसरा आसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया वो जगह ठीक नहीं है, वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी अम्मी और अब्बू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था।
इसीलिए शादी करके मैं अपने पाँव पे बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, आलिया, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बामुश्किल हमारे घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी, तब भेजोगे जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे, मैं उस हाल में तुम्हारे साथ राजी हूँ यूसुफ। खुदा के लिए तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी ही थी। आलिया से शायद मैं भी सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अक्सर देखता था तो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। मैंने ये सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। और आलिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, आलिया, आज तो नहीं, हाँ तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा यूसुफ, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं उसे देखा करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है ना, वो होती इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी के साथ मोहब्बत करती है तो फिर वो सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, अच्छा कल या आज किसी भी टाइम जाऊंगा, पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा के आऊंगा और मेरी दुकान पे आ जाना और मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए उस छोटे को भेज दो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफी हद तक राजदार भी था। वो मेरी आदत से खूब वाकिफ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पे आती थी, असल में मैं दिल फेंक हूँ, हुस्न परस्त भी हूँ। अच्छी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत चीजों की मैं तारीफ करता हूँ। शायद इसलिए मुझे सब मोहल्ले वाले इस नाम से पुकारते हैं। मैंने उस छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ। वो गया, मोबाइल लेके आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने छोटे को कहा कि आज तू मेरे घर खाना लेने मत जाना, मैं खुद ही खा के आऊंगा। उसने कहा, अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं खाना खाने के बहाने अब घर आया था। घर आया तो अम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया था। कहा, यूसुफ, आज तुम खाना लेने घर आए हो, उस छोटे को भेज देते। मैंने कहा, हाँ अम्मी, वो छोटा जरा काम में मसरूफ था, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा, अभी तो खाना नहीं बना। अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी घर में गई हुई थी, वो भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, तैमूर को। उसने कहा, नहीं तैमूर को नहीं, वो कोई और है, हमारी बिरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा, कनीज तुम रात को तैमूर के साथ ये काम क्यों कर रही थी, अगर उसको पसंद नहीं करती? उसने कहा, भाई वो तो मेरी जरूरत पूरी करता है, मैं उसे मना भी नहीं कर पाई, इसलिए। फिर मैंने कहा, कनीज ये गलत बात है, तुम अगर उससे मोहब्बत नहीं करती उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा, अम्मी अब्बू ये बात मानेंगे नहीं, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वो? हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, उसमें लेबर, शायद वो मजदूर थे। एक लड़का उसमें पठान था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत था।
میری بہن نے کہا کہ اس پٹھان کو میں پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے رات کو ملنے آتا ہے، پچھلی رات بھی وہ آیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں چل کیا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا، پھر اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ لڑکا